the stage. And on my own behalf, I would also invite Dr. Mohammad Azam Khan, who is not here, but he is listening online as a panelist for this session. Today's topic is very important, but unfortunately, we do talk about it, but rarely try to understand it. But in time, we will realize that this topic or this problem of insulin resistance is the basis and cause of almost every disease in the body. Right from insulin resistance, we have this metabolic syndrome, syndrome X, and all sorts of diseases. So insulin resistance is a basis of not only diabetes, but a multitude of other diseases. And all we know is that we have to treat insulin resistance with two drugs mainly. We have to give metformin or some TZD or something. So how do we deal with this insulin resistance? For this, we have Dr. Tahir Chaudhary, who is a very eminent speaker about this, and he will tell us that what else is there for insulin resistance which we do not know. So kindly, the floor is over to Dr. Tahir Chaudhary, please. Thank you very much, Arshad. I am highly indebted by your kind introduction. Actually, some acknowledgement right at the outset. आज का ये lecture जो था, that was scheduled to be, done by Associate Professor Dr. Tania Shukuri. She is Associate Professor of Physiology in the same university, University of Health Sciences. But due to some unavoidable health issues, she was unable to do today's module, and this responsibility was put on me. So I am just here to, replace Dr. Tania Shukuri. और मैं आपसे सब दोस्तों से जो ऑनलाइन भी हैं और जो हॉल में मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा. उनको हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है. एंड आई वुड लव टू हैव दैट वेरी काइंड, वेरी डिसेंट and very humble lady in our forthcoming modules, and I would love to see her on the same rostrum. With that little background, I'm this evening I am taking you on a journey from the definition of insulin resistance to the diagnosis, and ultimately we will try to figure out some possible remedies and some possible, preventive measures to cope with that basic pathophysiological derangement which is present in all of the metabolic and cardiometabolic diseases. This is, a paper from Enhance survey, and मेरे यहाँ चेंज नहीं हो रही स्लाइड, यहाँ चेंज नहीं हो रही इस लैपटॉप पे. Thank you. So this is a slide from Enhance survey which was done from 2009 and 2016.
that the time period between 2009 and 2016. And I came across this paper during this COVID pandemic. And according to this paper, only 88% 88% of US adults are metabolically unfit. And how they came to the concept they are metabolically unfit, they were just on these 5 metrics. So they were gauged on these 5 parameters, that is a normal waist circumference, normal blood pressure, normal HDL cholesterol, normal triglycerides, and normal glucose. And they were, you know, they were 88% of these adult population of USA was unable to come up to that standard, and only 12% of the US adults were metabolically healthier when gauged or judged on these 5 parameters. Incidentally, these 5 metabolic metrics, they constitute the metabolic syndrome. These are the important constituents of metabolic syndrome, syndrome X, and many other names. And this metabolic syndrome is the most modern name for insulin resistance syndrome. And this insulin resistance syndrome, this is the mastermind, Professor Gerald Reaven, who gave this name to these 5 metrics as a collective unit. The name given was the insulin resistance syndrome. And this Professor Gerald Reaven is the same guy who in 1989 gave us a notion that only 10% of diabetics, only 10% of all the diabetics in the world need insulin for their treatment, and those 10% of these diabetics are only type 1 diabetics. समझ रही बात आपको? उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में 100 डायबिटिक्स हैं तो उनमें से सिर्फ 10 लोगों को इंसुलिन की जरूरत है ट्रीटमेंट के लिए, और वो 10 लोग टाइप 1 के होते हैं, टाइप 2 के नहीं होते. और इस पे बजाय इसके कि इस कॉन्सेप्ट को प्रोपेगेट किया जाता, दैट वाज थ्रोन इन द गार्बेज एंड दैट वाज put under the cover, and that was not suitable for many of the pharmaceutical companies and many of the food manufacturing companies. Now, what's the insulin resistance? I will try to make it simplified for you because this is a bit tricky sort of concept. Now, this coffee color big figure in that cartoon is the cell, and ये जो आपको क्रिकेट की विकेट्स लग रही हैं, they are basically the insulin receptors on the surface of the cells. Now, what happens? And this is the most famous action of insulin, and we always try to understand this very unique concept just on the basis of this part of insulin resistance. What happens that normally insulin, अब आपने screen पे नजर रखनी है, lot of animation has been used to make you understand. Insulin comes and knocks at the door of the receptor, insulin receptor, and this receptor, when knocks at the this insulin molecule, when knocks at the door of this cell, something unusual, एक आम सी हलचल सी सेल के अंदर शुरू हो जाती है. It is just like that when somebody knocks at our main gate, something unusual starts inside the house. Like if you have a little puppy or dog, that will start barking. If you have some little kids in the house, they will start fighting with each other. Who will go to the door and open the door? So scientifically, we call this an action. Inside the cell, some action starts. Then, under the influence of this action, glucose goes in. And this is the most famous action of insulin.
Insulin comes, knocks at the door of the cell, and these cells open their door for the glucose. Okay. With the passage of time, concentrate on the screen, this action slows down. Advanced aging uses the carbohydrates, not exercising much. This action slows down. In order to revive that action again, now more of the insulin is required. Look at this. Many of the insulin molecules, and now that gentle knock at the door of the cell now is converted into fast pounding. अब जोर जोर से वहां पे दस्तक शुरू हो जाती है. Now, say for example, if initially 4 molecules of insulin were able to draw certain amount of glucose inside, now we need 10 molecules insulin to draw the same amount of insulin, same amount of glucose inside the cell. Okay. When this higher number of insulin molecules come, this is called hyperinsulinemia. Up insulin hyper हो गई, ज्यादा मिकदार में हो गई, and by this subtle hyperinsulinemia, that action which was getting weaker is now restored someone temporarily. ये थोड़ा सा फिर restore हो गया, but at the expense of more insulin. Okay, clear है जी बात? Now let's try to understand with another picture. This is a normal person. Insulin is normal. So is the glucose. You are absolutely metabolically healthy. But with the passage of time, before the rise in glucose, this insulin starts climbing. And this climb in insulin takes at least 10 to 20 years to climb. So, with that glucose-centric approach, we are so destined and prone to look at the blood glucose through the lens of glucose only. We always order blood glucose levels for our routine clinical practice. And when the patient comes to us with a normal glucose level, 96, 86, 80, we say, congratulations, you are absolutely fine, while he is not. In front of our eyes, our patients are getting fatter. They are putting extra fat on their bellies. Some of them are complaining us with the erectile dysfunction. Many of our female patients, they are complaining of PCOS, hirsutism, masculinization features. But we are just, fixed our eyes to the glucose. हम उनसे कहते हैं आपका glucose तो बहुत अच्छा जा रहा है. So this is a great disrespect to the basic of the disease, which is the stem of the disease. We pose so much disrespect to this insulin resistance that it disrespects us in the future. And it takes its revenge, 10 times with, all the metabolic syndromes, all the cardiometabolic problems and all that we will see in a little while. Now, a time comes when this same amount of insulin is not sufficient enough to take care of your blood glucose, and glucose start climbing up, and we break the news that now you are diabetic. But the problem of diabetes started at least 10 to 20 years earlier than you became overtly diabetic. Okay. Now, concentrate on this very simple diagram. Glucose in the orange and insulin on the green side with green color. And on the x-axis, I have given you the timeline. This time is not in minutes or hours. This is the timeline of a person in terms of years. These are the time period of the lifetime of a person. What happens with the advancing age? And I just draw
two perpendicular lines. These are hash lines, which are very important. So from line 1 to line 2, this is the time period. Just concentrate on it, that your blood glucose in yellow is absolutely normal, but your insulin is at least 10 times higher than the baseline. Got my point? Insulin is high. So this state is the state of normal glycemia, but state of hyperinsulinemia. So you can see over here absolute normal glucose, but strikingly high levels of insulin. And when we enter into the realm of type 2 diabetes from hash line number 2 to onward, you can see over here that this is the time when, first of all, insulin resistance plateaued at some time, peak pe jaake wo plateau hui, and then for the time being it just dropping down. But yahan pe ye farak samajh lijiye, insulin kam hui ya absent nahi hui. The biggest lie of the previous century was that diabetes is a chronic progressive disease, and this is the disease of pancreatic beta cells. Beta cells never die. I tell you with full responsibility. I would leave this question to our worthy panelists this evening. So insulin goes down, not zero. So this is the time when we call it hypoinsulinemia or insufficient insulin. Insulin is not insufficient, but it is insufficient enough to take the care of this amount of glucose, which was being taken previously in a very good manner. Now, अब ये जो है ये ज्यादा उतनी ही इंसुलिन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, थैंक्स टू आवर बर्गराइजेशन, कोकोकोलाइजेशन, आवर फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट्स, कि अब वही ग्लूकोज लेवल जो कि पहले 5 इंसुलिन मॉलिक्यूल से कंट्रोल होता था, 500 इंसुलिन मॉलिक्यूल से कंट्रोल नहीं हो रहा. दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स who are secreting the same amount of insulin, which is not being effective at the cellular level. Got my point? This process starts, insulin resistance starts first at adipose tissues, and then it spreads from here to your muscles, then liver, and lastly to the pancreas. So this is the sequence how this insulin resistance spreads out. Okay, so up till now, what we have learned and what we have understood, insulin resistance has two sides of one coin. It is our fault. We are just looking at insulin, that is it is a hormone which takes care only for the glucose. I have never seen any instance in any of the medical book or any of the international study where insulin resistance does not have these two phases. Number one, insulin is not working well at some cells, not all, at some cells. Some cells of the body, they retain perfect insulin sensitivity throughout the years. हम उसकी बात करेंगे वो कौन से cells हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता. Insulin not working well at some cells, for example, muscle and fat cells who are not responding to insulin, and this part causes diabetes. And the hyperinsulinemic part, जो कि दूसरा है, which is always overlooked, जिसकी बात ही कोई नहीं करता, that is chronically elevated insulin. This part is the cause of majority of the chronic metabolic diseases, like this chart. I tell you honestly, I had not much space on this slide. Otherwise, I would have included many of the other cardiometabolic diseases in that. So these are the most common, and these are, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि these are the metabolic diseases which are chewing up 75% of the healthcare budget. These are diabetes, heart disease, fatty liver disease, polycystic ovary syndrome, which is the biggest cause of infertility
infertility in the women. And with due regards and apology from our gynae colleagues, PCOS should never be treated with Clomid. I can prove it. Our paradigm is absolutely wrong. This is not a Clomid disease. This is not a metformin disease. अब ये जो मैंने 10-12 डिजीजेस हैं, इस पे एक घंटे का पूरा एक लेक्चर एक डिजीज पे हो सकता है मिनिमम, बट आई एम जस्ट टचिंग. देन erectile dysfunction in males. What is the etiology? Just to look at. Insulin comes, knocks at the door of the endothelial cells and causes the release of a substance called nitric oxide. This is entirely different from nitrous oxide, which is laughing gas. This is nitric oxide. This nitric oxide causes the dilatation of your tiny blood vessels. Okay? But with insulin resistance, the level of nitric oxide goes down, and now that vasodilatation does not occur, which is required for that particular organ. And this, due to the same mechanism, it causes hypertension due to the vasoconstriction, vasodilatation nahi ho rahi, and that leads to the endothelial dysfunction, heart disease, peripheral vascular disease. So this is the etiology. Okay. Now cancer. Two cancers are most prevalent with insulin resistance: prostate cancer in the males and breast cancer in the females. Then 3 neurological disorders: stroke, dementia, and migraine. Those of your patients who come to you with repeated attacks of migraine, just bring down their insulin resistance. They will come out of all of these medications, high top and painkillers and Indrol and Stemetil and all that. Just practice. Then dementia. This is the insulin resistance of the brain. Okay? This is also called type 3 diabetes. So many more, like arthritis, fatty liver disease, diabetes mellitus and all that, and fat distribution. They are all the sequelae of one common trunk from where all the branches they blossom. This is insulin resistance. I would not go into much of the details. Rheumatoid arthritis, which is the inflammatory arthritis जितने भी हैं, ठीक है जी, फंक्शनल नहीं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन्फ्लामेशन तो हर आर्थराइटिस के साथ आएगी, ठीक है, आपकी पेन इंक्रीज हो जाएगी अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा, आपका वेट ज्यादा है. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस और एनी आर्थराइटिस ऑफ द लोअर लिम्ब, यू विल गेट वर्स्ट. और सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आगे स्लाइड आ रही है, उसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. मुझे ये तस्वीर बड़ी पसंद है, ये बड़ी वायरल हुई थी आज से चंद माह पहले या साल पहले. परफेक्ट पिक्चर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ये चाइना के अंदर ट्रेन्स में जब बहुत ज्यादा रश होता है, माशाल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना की है, तो जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है ट्रेन्स के अंदर, तो दे हैव हायर्ड सम पुलिसमैन टू जस्ट थ्रस्ट दीज पीपल इनसाइड द ट्रेन कंपार्टमेंट. यू टेक दिस ट्रेन कंपार्टमेंट as the cell. They are just, thrusting them inside the train, because जब तक ये दरवाजे से आगे नहीं हटेंगे तो ऑटोमेटिक डोर बंद नहीं होता. तो ट्रेन खड़ी रहती है स्टेशन पे, तो उन्होंने इसको पुलिसमैन हायर किए हुए हैं जो कि इनको फेंकते हैं, खुसाते हैं अंदर ताकि कि ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाए. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत सारे लोग और खड़े हैं. अब जब अगली ट्रेन आएगी इसी स्टेशन के ऊपर, तो हमें ये पुलिसमैन बढ़ाने पड़ेंगे, ये कम पड़ जाएंगे, विच इज हाइपर इंसुलिनीमिया. पुलिसमैन को आप इंसुलिन समझ लें और ग्लूकोज को ये थ्रस्ट कर रहे हैं इनसाइड द सेल्स. तो ये इंसुलिन इस तरह से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आगे जगह नहीं है, सेल इज ऑलरेडी फुल. और इंसुलिन, उसकी ये अनदर एनालॉजी,
जब आप एक बैग अपना पूरा पैक कर लेते हैं तो आखिरी जो 2 या 3 जोड़े होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, पैंट्स होती हैं, वो उसके अंदर पैक नहीं हो रही, इसके बावजूद कि खतून ऊपर बैठ के जोर लगा रही है कि ये शायद आखिरी कपड़े इसके अंदर चले जाएं, बट दे विल नेवर. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एन ओवरफ्लो फिनोमिना. ये ओवरफ्लो का नाम है. पंजाबी में कहते हैं रज खान दियां मस्तियां. ये वो है. Now, what are the causes of insulin resistance? Too much carbohydrates and high frequency of eating plus the processed food. जितना भी फूड आपका प्रोसेस्ड है उसकी पहचान क्या होती है, ये मैंने आपको बताई हुई है. द फूड विच इज कंटेन्ड इन विच इज डाइट कंटेन्ड इन 3 B's: बैग्स, बॉक्सेस एंड बारकोड्स. जो बैग आपको आम जो है वो किसी बॉक्सेस में पैक नजर नहीं, उसमें बारकोड नहीं नजर आया था. अब ये तकरीबन ये जो बड़े बड़े अब स्टोर्स हैं वो ये हरकत कर रहे हैं. अदरवाइज फलों के ऊपर, चीनी की बोरी के ऊपर या इन चीजों के ऊपर कोई बारकोड नहीं लगे होते थे. सो बैग, बॉक्सेस एंड बारकोड्स के साथ प्रोसेस फूड है वो तमाम फूड जो किसी प्रोसेस के जरिए आप तक पहुंच रहा है. आम आपके पास प्रोसेस के जरिए नहीं पहुंच रहा अगर मौसमी है तो. आपके पास और जितनी नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड है, सब्जियां सारी आपके पास नेचुरल प्रोसेस के साथ आ रही हैं, वो क्या अब हम उनको भी अडल्ट्रेशन कर रहे हैं. सो टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, बार बार खाना और प्रोसेस फूड, ये सबसे बड़ी काज है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की. नंबर 2, इन्फ्लेमेशन, जो भी मैडम ने बात की थी. फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एट एक्टिव फेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड वाइस वर्सा. दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ाते हैं. नंबर 3, स्ट्रेस, एक्यूट और क्रॉनिक. क्रॉनिक स्ट्रेस तो हमें पता है. एक्यूट स्ट्रेस कौन सी है? जस्ट द डेप्रिवेशन ऑफ वन सिंगल नाइट ऑफ स्लीप पुश यू अंडर स्ट्रेस. आज आप खुद से भी पूछिए और अपने बच्चों को भी देखिएगा कि हम सुबह सहरी तक मोबाइल पे होते हैं. हमने तो जिस दोस्त को भी 3-4 बजे देखा ऑनलाइन ही देखा, क्योंकि हम खुद ऑनलाइन होते हैं. आई एडमिट, वन सिंगल नाइट डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप पुट्स यू एट द वर्ज ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी. एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस वो तो आपके बेताशा साथ है, जिंदगी के साथ चिपकी पड़ी. ठीक है जी. सो व्हाट डू दे डू दे काज rise in the catecholamines. They boost up your sympathetic nervous system and causes rise in the adrenaline, noradrenaline, cortisol. Consuming omega-6 rich seed oils, canola oil, सूरजमुखी का ऑयल, और कौन से ऑयल है आफत साहब आजकल? ये जो सीड ऑयल्स हैं जितने भी. पहली बात तो ये कि सीड ऑयल्स आर ऑल द फैक्ट्री वेस्ट. वो अपने वेस्ट बेच के भी आपसे पैसे कमा रहे हैं. जितने भी सीड ऑयल्स हैं, सूरजमुखी का तेल हो गया, कैनोला का तेल हो गया, उसके अलावा और कौन से हैं जी? कॉर्न ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया. ये तमाम सीड ऑयल्स जो है, पहली बात तो ये किसी सीड से नहीं निकलते. दीज आर द इंडस्ट्रियल वेस्ट. आप इस पे कीजिएगा और पता चलेगा. दे हैव omega-6 रिच these oils are. ठीक है जी. omega-6 होते क्या वैसे भाई दी टेक्निकली? omega-6 ट्रांसफैट. ठीक है जी. Trans fats are deliberately added to your processed food. So is the fructose, and so is the branch chain amino acids like leucine, isoleucine, valine. ये 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड है. ये डिलिबरेटली आपके प्रोसेस, जितने भी आपके बच्चों के लिए आप चीजें चिप्स खरीदते हैं, जितना भी आप मोयनेस, जितने भी आप अपने किचन के लिए केचप्स खरीदते हैं, डबल रोटियां खरीदते हैं, हर वो चीज जिसमें मिठास है, हर वो चीज जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो और जिसकी मिठास बढ़ानी है, मिठास बढ़ाई जा रही है फ्रुक्टोज से, जो कि मेटाबॉलिक टॉक्सिन है, मैंने पिछली दफा बताया था. और शेल्फ लाइफ बढ़ती है ब्रांच चेन अमीनो एसिड के साथ, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, और उसके अलावा ट्रांस फैट, बिकॉज नो बैक्टीरिया ऑन दिस फेस ऑफ द अर्थ कैन ब्रेक दैट ट्रांस बॉन्ड. So it increases the shelf life of your food, and these are being
very obnoxiously being used by the food industries. इंसुलिन, अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कर देती है। ये ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है कि अभी आपको यहां से उठा के एक साथ वाले कमरे में लेके जाया जाए जो मुद्दतों से बंद पड़ा हुआ और फाउल स्मेली है, जाते ही आपके नाक के ऊपर ऐसा भभका पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। 5 मिनट उस कमरे में बैठ जाए, उसके बाद सारा दिन गुजारे, अब आपको स्मेल नहीं आएगी। इंसेसेंट स्टिमुलेंस, कांस्टेंट स्टिमुलस ऑफ एनीथिंग causes the resistance of that. We have seen that in the drugs. Where is chloramphenicol now? Where is tetracycline now? Where is amoxicillin now? We have just lost many of the medicine due to this phenomenon of resistance. हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस पैदा कर दी पाकिस्तान के अंदर। So all of these incessant, too much of something leads to resistance to that substance. यही वजह है, there is a genius behind the design of a person. लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी आसाने तक़वीम। बॉडी के अंदर इंसुलिन, जो नॉर्मल इंसुलिन है, that is secreted in a pulsatile manner. ये गई ऊपर, 10 मिनट के बाद नीचे आती है। 10 minutes it remains elevated for 10 minutes only, then comes down to the baseline. Then after 10 minutes it goes up 10 minutes. अल्लाह मियां ने ये डिजाइनिंग इसलिए की है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट ना हो जाए। आपको कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन नहीं दी गई, वो हमने दी है। अल्लाह मियां ने आपको डिजाइन इसी पैटर्न पे की है। ठीक है, मेक सेंस। और आखिर में जो कि चीज बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देयर आर स्टडीज नाउ that bare walk of 10 to 15 minutes across a busy road leads to the inhalation of the fume exhaust from the silencers of the motor vehicles, diesel exhaust. They pass through your alveolar membranes, pass through the lungs, get into your circulation, and they cause insulin resistance. That's the reason that the most industrialized countries like China, India, they are at top, and Pakistan is at number 3 due to the high pollution level. जो industrial countries हैं उनमें pollution भी ज्यादा है, जो overcrowded countries हैं वहां पे pollution ज्यादा है, वहां पे गाड़ियां ज्यादा हैं. That's the reason India, China and Pakistan now sharing the first 3 places in the overall rating of insulin throughout the world. Diagnose कैसे करते हैं? Diagnosis is two type of diagnosis. Now I will not take more than 5 to 7 minutes from now. There are 2 types of diagnosis. One is clinical, one is lab diagnosis. Clinically हम कैसे diagnose करते हैं? Every person who is little overweight and hypertensive, no need to go for any other test. He is surely insulin resistant. It is not possible that hypertension comes along without इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो बात इधर ही खत्म हो जाती है. अगर पेशेंट का थोड़ा सा ओवरवेट है और हाइपरटेंसिव है, नो नीड फॉर अदर टेस्ट, ही इज श्योरली इंसुलिन रेजिस्टेंट. स्किन टैग्स, ये जो आपने अक्सर इस तरह के टैग्स देखे होंगे, मोके जिसे हम कहते हैं, मोस्टली ये गर्दन के पीछे आर्म पिट्स के अंदर हमें नजर आते हैं. और ये तो आप सबने देखा हुआ है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. बट टेक होम मैसेजेस, स्किन टैग्स आर मोर कॉमन देन एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. आप अगर अपने मेल पेशेंट का और जो खवातीन अगर देखना चाहें अपनी फीमेल पेशेंट्स को, तो उतार के देखें उनके आंख पिट में अगर आपको स्किन टैग्स आर मोर कॉमन देन द एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो क्लिनिकली दे मेक यू अलर्ट दैट पेशेंट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट. नाउ लैब वर्क, 3 टेस्ट करा लें, इसी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस निकल आएगी. दीज आर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन लेवल and fasting lipid profile. First of all, fasting insulin level. जो मैंने पहला कहा, ये बहुत सारे लोगों को और हमारे जो सीनियर्स हैं उनका पसंदीदा टेस्ट नहीं है. प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने भी पिछली दफा यही बताया था कि इंसुलिन, और उसकी रीजन मैंने बता दी कि हमें कोई पता नहीं है कि जब हम इंसुलिन के लिए सैंपल ले रहे हैं, इंसुलिन पीक पे थी या ट्रफ पे थी. अगर तो हमने जब सैंपल ड्रॉ किया इंसुलिन वाज एट द पीक, तो इंसुलिन लेवल ज्यादा आ जाएगा. और अगर इंसुलिन ट्रफ पे थी
तो इंसुलिन लेवल काम आ जाएगा। इसलिए माहिरीन इसको कोई इतना पसंदीदा टेस्ट करार नहीं देते, बट इस टेस्ट से हम आगे क्या काम ले सकते हैं हम आपको बताते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, टेस्ट नंबर 2। whenever your patient comes with the lipid panel, go for the triglyceride to HDL ratio. ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड कर दीजिए उसके HDL के ऊपर। इफ इट इज दिस रेशियो इज लेस देन 1.5, योर पेशेंट इज इंसुलिन सेंसिटिव, एंड इफ इट इज मोर देन 1.5, ही इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। सिंपल। तीसरा टेस्ट होमा-IR, होमोस्टेटिक मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये ज्यादातर हमारी रिसर्च में किया जाता है, लेकिन आप अपने क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। ये अब फार्मूला, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। यहां पे आपने फास्टिंग ब्लड शुगर को मल्टीप्लाई करना है फास्टिंग इंसुलिन के साथ, और 405 इज द कांस्टेंट। आप इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, अगर आपका जवाब 0.5 से 1.4 है, यू आर नॉर्मल। 1.5 to 2.5 moderate insulin resistance, 2.5 or more severe insulin resistance, and if it comes out to be more than 3, your patient is either a diabetic or at the verge of being a diabetic. ठीक है जी, ये 3 टेस्ट हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी। और एडिशनल अगर आप देखना चाहें तो गो फॉर द अल्ट्रासाउंड स्कैन फॉर द लिवर, दैट विल गिव यू द ग्रेडिंग ऑफ द फैटी लिवर, grade 1, grade 2, grade 3, whatever it is, and then the liver function tests. They will also give you the stress level at your liver. Now, let us get you out of the trouble. Treatment of insulin resistance क्या है या बचाव क्या है? Focus on the screen. ये क्या चीज आप देख रहे हैं? एक जार है, ठीक। अच्छा, इस तस्वीर के अंदर आपका ट्रीटमेंट है सारे का सारा, सिर्फ एक तस्वीर के अंदर। एक हमारे पास बाउल है जिसके ऊपर शुगर आई, और बाउल को आप इंसानी जिस्म समझ ले, अपनी बॉडी समझ ले। इंसुलिन गिरना शुरू हुई। शुरू में ये बाउल खाली था, चलते 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 वो इसको सहारता रहा शुगर को, और फिर जब ये बाउल फुल भर गया तो शुगर बाहर गिरने लगी, विच इज कॉल्ड स्पिलिंग आउट ऑफ द शुगर। सेम इज द केस विद योर बॉडी। जब तक आपकी बॉडी इंसुलिन के एक सर्टेन लेवल को बर्दाश्त कर सकती थी, उसने किया। उसके बाद एडिशनल शुगर को दैट वाज पुट इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें इलाज कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूं कि इसी बाउल के अंदर इलाज है। हमने एकरबोज बनाई दवा बहुत पहले। किस लिए बनाई थी? उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? दैट वाज जस्ट ब्लॉकिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल स्टार्चेस एंड ग्लूकोज फ्रॉम द गट इनटू द सर्कुलेशन। क्या करती थी? वो आपकी सर्कुलेशन के अंदर स्टार्चेस और शुगर को ब्लॉक करती थी। मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट की तरफ आ जाइए, वो है SGLT2 इनहिबिटर्स, जिनका आजकल बहुत चर्चा है। वो क्या करते हैं? दे थ्रो द ग्लूकोज आउट ऑफ योर सर्कुलेशन। एक दवा आपने बनाई कि सर्कुलेशन में ग्लूकोज ना आए, एक दवा आपने बनाई कि सर्कुलेशन में से ग्लूकोज को थ्रो आउट कर दें। कम्स आउट दैट इफ वी पुट समथिंग स्मॉलर इन द सर्कुलेशन और उसको सर्कुलेशन से निकाल दें, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम रहेगी, आपकी डायबिटीज भी नहीं होगी। इस बाउल में क्या है? अब अगर इस बाउल को मैं नॉर्मल करना चाहता हूं दोबारा, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला ये कि मैं इसके अंदर शुगर ना आने दूं, जो कि एकरबोस की मैंने मिसाल दी। पहला काम तो ये करूं कि ये जो ऊपर से शुगर गिर रही है, अंदर आ रही है सिस्टम के, इसको बंद करूं। दूसरा तरीका यह है कि ये जो अंदर बहुत ज्यादा बन चुकी है, इसको बर्न आउट कर दूं, खाली कर दूं बाउल को। सो सिंपल। Diabetes type 2 treatment is not that complicated, which has been made over the year. Why do you put a macronutrient like glucose into your system while your body has zero biological need for the glucose?
शॉन बेकर का नाम सुना है किसी ने, जो मूवीज देखने के शौकीन है? इज अ बॉडी बिल्डर और मार्शल आर्ट का मास्टर है और हॉलीवुड फिल्म स्टार है। उसकी ये 2-3 बड़ी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बड़ी जबरदस्त मूवीज आई हैं। शॉन बेकर की तस्वीर आज आप अभी खोल के देखिएगा गूगल पे, उसकी बॉडी देखिएगा। वो कहता है मुझे याद नहीं मैंने आखिरी दफा कार्बोहाइड्रेट का एक जर्रा भी अपनी बॉडी में डाला था। ही लिव्स ऑन स्टेक्स, मीट्स एंड ऑल दैट। शॉन बेकर। ब्लड, आप सारी जिंदगी शुगर के बगैर गुजार सकते हैं। ये जो डाइटिशियंस की किताबों में लिखा हुआ है जी, इतने परसेंट हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, इतने परसेंट हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इतने परसेंट हमें फैट चाहिए, गार्बेज। यू डोंट नीड ग्लूकोज व्हाटसोएवर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप नहीं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं, हाल तो दे आर वेरी मच पॉपुलर, हमें मजा भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए। मैं सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से सारे कार्बोहाइड्रेट्स कट कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप जरा से भी नहीं खाएंगे, आपकी जिंदगी जरूर गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? पिछली दफा भी बात हुई थी कि आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम है जो कि अमाइनो एसिड से और फैटी एसिड से अपना मतलूबा मिकदार ऑफ ग्लूकोज बना लेगा। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो आपके ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ मिकदार तो ग्लूकोज की होती है ना, आप चाहे कुछ भी ना खाया हो। वो ग्लूकोज कहां से आया? दैट हैज कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स। आगे अब आपके 5 लीटर आपका ब्लड है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप इसको 5 लीटर ब्लड के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और उसको कन्वर्ट करें ग्लूकोज ग्राम्स के अंदर, तो ये एक छोटा चम्मच चाय का चीनी का बनता है। आपकी जिंदगी के लिए एक चाय का चम्मच सब चाहिए, और ये चाय का चम्मच बराबर चीनी आपकी बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस बना लेती है। डज इट मेक सेंस कि हम ग्लूकोज के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं? चलें आगे, हम आगे जब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। एंड दिस इज द रीजन our normal dietary pattern: breakfast, snack; lunch, snack; supper, snack. We never let our insulin to come down because we are not letting carbohydrates we are not stopping our carbohydrates going into the system. हर वक्त कार्ब के ऊपर हमारा जिंदगी मुश्तमिल है। इंसुलिन लेवल हाई रहता है। इंसुलिन बीइंग अ स्टोरेज हार्मोन, इट converts all those extra sugar into the fat by the process called de novo lipogenesis in the liver. हमने पिछली दफा इसकी सारी etiology पे बात की थी, and that is the end game. फिर ये होता है, जो बंदा पांव का गैंग्रीन करा के आया है ऑन एवरेज 1 से 2 साल वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तमाम एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, यही रॉटनिंग है, यही प्रॉब्लम, इसी तरह का एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हार्ट में है, ब्रेन में है, किडनीज में है, एवरीवेयर इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जब आपके पेशेंट की एम्पुटेशन हो जाए तो बस उसकी तैयारियां शुरू कर दें आप। सो पिछली दफा वाली स्लाइड, कोशिश करें इंसुलिन स्पाइक ना करें। इंसुलिन स्पाइक करेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगी। सो please try to understand that these carbohydrates give you maximum rise in your blood glucose level, and in order to take care of that glucose, insulin spikes, and same is the case but on a very lower scale with proteins, and with fats no spike in insulin. So this is the mantra: cut the carbohydrates, prioritize proteins, and fill with the fat, along with exercise, intermittent fasting, time restricted eating, and ketogenic diets. Ketogenic diets हमें फैट से मिलेंगी। ठीक हो गया? आखिरी स्लाइड बड़ी मुझे पसंद है। अब तमाम लोगों के जहन में यहाँ पे कुछ अबहाम है, कुछ जहन में बातें आई कि चौधरी साहब आज हमें आप कीटोजेनिक डाइट पे क्यों डाल रहे हैं? अल्लाह मियाँ ने आपको कीटोजेनिक डाइट के साथ ही भेजा है दुनिया में। कैसे? जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस लास्ट स्लाइड। और मैं इस स्लाइड को चाहूंगा कि मैं आपके लिए इसको पढ़ दूं। टाइटल है लेवल्स ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट इन स्टार्विंग सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एजेस। द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन न्यूबॉर्न, विच इज एसेंशियली कीटोटिक,
कीटोटिक है ये जब बच्चा पैदा होता है। 3 तरह की कीटोन बॉडीज हैं। आप कीटोसिस करेंगे, जब आप कीटो डाइट पे जाएंगे तो 3 तरह की हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट 78% तक ये बॉडी में प्रोड्यूस होती है, हाईएस्ट, फॉलोड बाई एसिटो एसिटिक एसिड 20% एंड एसीटोन 2%। ये 3 आपकी मेन कीटोन बॉडीज हैं एंड विच आर ड्राइव फ्रॉम द फैट। सो the metabolism of the human newborn, which is essentially ketotic, blood glucose levels fall strikingly in the neonates, and concentrations of beta hydroxybutyrate may rise to 2 to 3 millimole. The newborn human brain consumes 60% to 70% of total metabolism at birth, nearly half via beta hydroxybutyrate. आखिरी 4 लाइनें बड़ी मजे की हैं। फिटिंग इन विद दिस पैटर्न इज मैटरनल क्लोस्ट्रम। इट कंटेन्स मच ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन। जो मैं कहता हूं, प्रायोरिटाइज प्रोटीन एंड फिल विद द फैट। नेचर क्या कर रही है? क्लोस्ट्रम के अंदर इट कंटेन्स मच ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन बट लिटिल लैक्टोज। अल्लाह मियां ने खुद ही शुगर की मिकदार कम कर दी है। स्टार्टिंग मैन्स एंट्री इनटू सोसाइटी ऑन एन एटकिन डाइट। अल्लाह मियां ने इंसान को एटकिन डाइट के ऊपर पैदा किया, लेकिन एटकिन ने अल्लाह मियां की इस चीज को पहचाना तो एटकिन डाइट का कॉन्सेप्ट दिया। फिर वही बात, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। All these pathologies are never taught in our medical colleges. We just learn prescription and procedures in our wards. पिछली दफा आपने देखा 19.9% curriculum is only fixed for diet and nutrition in all of the American medical colleges. अब यहां से ये सवाल पैदा होता है, पर्टिनेंट क्वेश्चन, कि क्या अगर हम इन हदायत पे अमल करें तो दिस इज द क्वेश्चन, कैन वी क्योर टाइप 2 डायबिटीज? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के प्लेटफॉर्म से ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम फ्लोट किया गया था पाकिस्तान। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, अगर किसी को इस पर एतराज है तो मुझसे हमसे मुनाजरा करके देख ले कि ये पहली दफा कॉन्सेप्ट आज से 2 साल पहले किसने दिया था लाहौर में। Can we cure type 2 diabetes? Yes, we can. Because if there is no diabetes, no diabetic nephropathy, no diabetic foot ulcers, no diabetic retinopathy, reduced stroke, MI and cancers, no drug, no surgery, no cost. Does it suit to our pharmaceutical friends? If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster. हमने अपनी सीढ़ी लगाई हुई है सिर्फ गोलियों के ऊपर, कैप्सूल्स के ऊपर। Every morning your patient wakes up with the sense of hopelessness that 1 tablet for diabetes, 1 tablet for hypertension, 1 tablet for erectile dysfunction, 1 tablet for dyslipidemia, एक ताकत की दवा, एक मैदे का कैप्सूल, and he thinks that this is the fate for his rest of his life. This can all be reversed. This can all be reversed at 180. With that, thank you all. Some housekeeping rules for today. आज मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो हमें उन्होंने बल्कि बकायदा हमें इसके बारे में ये बताया कि सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। आज हम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो पर्टिनेंट है मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ ऑनलाइन लें। यहाँ पे दोस्त हमारे जो हॉल में काफी तादाद में मौजूद हैं, मैं उनके लिए बाद में एक्स्ट्रा टाइम भी बैठने को तैयार हूँ। प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ हैं और माशाल्लाह हमारा बड़ा जबरदस्त पैनल है। हम आपके क्वेश्चंस का बाद में भी जवाब देंगे, बट टुडे वी विल प्रेफर टू टेक अप द ऑनलाइन क्वेश्चंस।
So somebody can forward us these questions. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर चौधरी, जबरदस्त लेक्चर था और बिल्कुल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेक्चर, और इसने टोटली हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। और मेरे ख्याल में अगर हम इन तमाम हदायत पर अमल करें तो हमारे विदाउट ड्रग्स, विदाउट इंसुलिन, विदाउट एनीथिंग, वी कैन गेट अ very good control of diabetes. We have some questions online as well as for people from here. We will take some questions online, and I would request all the people to just limit themselves to only one question. There should be short answers and short questions, please. So the first question, please, आप पढ़ेंगे जरा, मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ से। जी जी, पहला क्वेश्चन जो इनका है ये फैटी लिवर के बारे में, कि कहते हैं कि अगर फैटी लिवर किसी को है, if somebody has fatty liver, what should be the amount of fat in the diet? Amount of fat in the diet. बताइए, what is the amount of fat in diet? जी, The if whole somebody of the is having amount of, fatty liver, how much fat dietary should he fat take in fatty liver. in diet? Dietary fat कितना इफेक्ट करती है लिवर फैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है अगर किसी ने ताहिर साहब का पिछला और आज का लेक्चर दोनों गौर से सुने हुए हैं, तो शायद इस सवाल का जवाब उन्होंने कई मरतबा इस सारे सिनेरियो में दिया है। असल बात ये कि जो फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, तमाम के तमाम। ये सारे के सारे इंटरचेंजेबल हैं एक दूसरे में और दूसरा तीसरे के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ हमसे ये पूछें कि कितनी फैट कोई बंदा अपनी डाइट में ले तो उस बंदे का लिवर फैटी हो सकता है, तो ये बात मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैट का लेना नहीं आएगा, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का लेना और एक प्रोटीन का एक मखसूस अमाउंट से ज्यादा लेना, ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे। प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट भी आप ले रहे हैं, जितना निशास्ता आप ले रहे हैं, वो सारे के सारा अल्टीमेटली जितना जरूरत से ज्यादा है वो अंडर द इफेक्ट जो अभी डिस्कस हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, अल्टीमेटली उसने फैट बन जाना है और फैट बन के उसने जहां जहां उसको जगह मिलनी है उसने वहां पे चला जाना है। एंड लिवर इज वन ऑफ दोज एरियाज जहां पे कि वो जाके डिपॉजिट कर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल को आप ओवरऑल ब्रॉडर सिनेरियो में समझें कि बजाय इसके कि आप ये कहें कि हम फैट कितनी लें, एक बंदा जो सिर्फ फैट पे चल रहा है क्या उसे ही सिर्फ फैटी लिवर होगा, ऐसी बात नहीं है। इन तीनों चीजों को मुनासिब तरह से, खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों को मुनासिब तौर पे लेना जो है वो बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल जो बात में भी इस पर शायद बहुत दफा आज बात होगी, वो ये कि जितना भी आपका बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट को आपको नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आना है। और अगर आपने इवन फैटी लिवर का भी ट्रीटमेंट करना है, इस पर शायद अभी बात मजीद भी होगी आने वाले दिनों में, तो एक सिर्फ और सिर्फ की आपके पास है फैटी लिवर की ट्रीटमेंट के लिए। अब मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसको फैटी लिवर डायग्नोज हो गया, उसको नेफल्ट है, और आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं और उस बंदे का बॉडी वेट जो है वो उसकी जो नॉर्म है उससे ज्यादा है, उसका BMI ज्यादा है, तो सबसे पहले मेरा ये काम है और मैं जो उसको कहता हूं कि टेक 2 months 3 months और अपने बॉडी वेट को आप कम से कम 10% कम करके तो फिर आए। अगर वो बंदा 10% अपना बॉडी वेट कम कर लेता है फ्रॉम दैट वन जिससे वो आया था, तो उसका फैटी लिवर ऑटोमेटिकली ठीक हो चुका होगा। और अगर नहीं ठीक हुआ तो वहां से आप अपने सफर का आगाज करें एंड स्टार्ट गिविंग थेरापेटिक एजेंट फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड के उसने वेट कम भी किया हुआ है, वो वॉक भी कर रहा है, वो आपकी डाइटरी जितनी भी आप उनको प्रिकॉशंस दे रहे हैं अमल भी कर रहा है, एंड देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू सेटल डाउन दिस इश्यू। सो मेरा ख्याल है कि इसको हम इस तरह से ले लें कि आप सिर्फ लिपिड के बारे में बात मत करें, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट लिपिड दोनों के बारे में बात करें कि आपको उनका जो अमाउंट है वो इस तरह से लेनी है कि आपका बॉडी वेट पुट ऑन ना हो और आप अपने नॉर्मल BMI के अंदर अंदर रहें। डॉक्टर सईद अहमद इज हियर, प्लीज। सही साहब आप आ जाइए। डॉक्टर सईद साहब आप आ जाइए। अच्छा, क्वेश्चन जो उन्होंने किया था वो ये था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइटरी फैट ऑन द लिवर फैट। ठीक है, क्योंकि हमने सारी गुफ्तगू के अंदर हमने फैट कंजम्पशन बढ़ाने पे जोर दिया है, तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। सो
Dietary fat does not increase your liver fat. Full stop. Reason being, dietary fat goes to your gut, packed into chylomicrons and goes to the lymphatics. आपकी जो carbohydrates हैं, they travel to the liver. Very small amount of these carbohydrates, they are packaged in the form of glycogen store, and they are very small stores. बहुत छोटे stores होते हैं. Just you can consume glycogen for 1 day or so. All of the rest of the carbohydrates, they are converted into the fat by the process called de novo lipogenesis. Fat convert, carbohydrate convert होते हैं liver में, fat में. Dietary fat liver में जाके fat को उसको कुछ नहीं कहती. Hope I make the point clear. Fatty liver के पीछे high carbohydrate है, high insulin है, वो dietary fat नहीं है. Next. मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर बशीर अहमद न्यूट्रिशनिस्ट से. अभी बात कर रहे थे कुकिंग ऑयल्स वगैरह की, कैनोला की बात हुई और दूसरे ऑयल्स की बात हुई, लेकिन जो हम कीटोजेनिक डाइट के अंदर बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं एमसीटी ऑयल को या कोकोनट ऑयल के, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑयल्स एंड द रेगुलर ऑयल्स वी आर यूजिंग एवरी डे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम जी. मैं इस सवाल के जवाब से पहले आप लोगों की परमिशन से आपके लिए कोई होम टेक मैसेज चाहूँगा, वो आपको दे दूँ ताकि आपके लिए और आपके पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस फोरम का जिन्होंने मुझे इधर बुलाया. तो ताहिर चौधरी साहब ने आज मेरी एक मैसेज नोट कर लें कि कौम को अवेयरनेस कर दिया, जगा दिया है. ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लेवल तक नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआओं से और कोशिशों से ये पूरी दुनिया में जाएगा. इसमें होम टेक मैसेज है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है. डायबिटीज़ ना लें, इसको एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम लें. जो इन्होंने मैसेज दिया है, इनके लेक्चर का सीलियंट फीचर है. उसको कैसे आपने दूर करना है, आप अपने लिए भी और अपने पेशेंट के लिए भी, वो उन्होंने बहुत डिटेल से बता दिया. लेकिन मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स इसमें रखूँगा कि एक, आप ओवरलोड ना होने दें. जिसे वो प्रोसेस फूड कह रहे हैं, मैं इनको केमिकल वाली कहूँगा. इसमें 3 चीज़ें हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. जो होम टेक मैसेज है आपके लिए और आपके पेशेंट के लिए, सो ईजी है. लेकिन अगली बात, जो हमारा माहौल है इसकी इजाज़त नहीं देता, प्रैक्टिकल जो मुश्किल है, वो है कि आप 3 चीज़ें रिफाइंड फूड में निकाल दें. एक बनास्पति घी, एक चीनी जिसे ऑयल कह रहे हैं, जो भी हैं सीड ऑयल जिनका भी ओमेगा 6 का जिक्र हुआ है, और मैदा, ये रिफाइंड फूड में निकाल दें. मोस्टली केमिकल आपकी खुराक से निकल जाएंगे. आपको कैंसर नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको मोटापा नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी, जोड़ों का मसला नहीं होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. इंसुलिन रेजिस्टेंट करने के लिए आपको इन्फ्लेमेशन को दूर करना है. जब तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं है, आपको बहुत कम चांस है हार्ट अटैक के और उसके अपना स्ट्रोक के, क्योंकि आपकी जो है ना वेसल्स ब्लॉक नहीं होती. जब इन्फ्लेमेशन होती है तो कोलेस्ट्रॉल आता है, उनको बंद कर देता है. जो एक कुदरती मैकेनिज्म है जो उसने करना होता है अपना रिपेयर का काम, लेकिन इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो आता जाता है. तो एक, आप ओवरलोड को कम करें, और दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक टिप बता देता हूँ. आप डेली 3 फिंगर की एक पिंच, एक चुटकी ना दारचीनी नहीं है, सिनामन, इसको PCOS को खा लें. अपने दांतों में भी रखो आपके जिंजिवाइटिस के लिए, और बॉडी की जो इसकी माउथ बैड स्मेल है उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है. जब इंसुलिन रेजिस्टेंस दूर करेगी, जो FDA की उसमें अपना जर्नल में जो है ना प्रिंट हो चुका है बहुत पहले, कोई 10-12 साल पहले. तो आप इसको रोजाना भी ले सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, सालन में भी डाल सकते हैं. ये 2 चीज़ें जो है ना, मैं इनके लेक्चर से ताहिर चौधरी साहब के हाईलाइट कर रहा हूँ कि इन 2 चीज़ों का, एक ओवरलोड ना होने दें, रिफाइंड फूड ना आने दें, और दूसरा अंदर से उसकी रेजिस्टेंस को दूर करें. तीसरा फैक्टर जो इन्होंने डिटेल से अभी बताया, डाइटरी फैट, वो है अपना फाइबर्स हैं. डाइटरी फाइबर्स आपको मिलेगा, आप ग्रीन फ्रेश सैलड लें, कचूमर सैलड लें, और अपना फ्रूट चाट लें. इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइटरी फाइबर भी और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी और विटामिन भी मिल जाएंगे. बहुत शुक्रिया सर. आप जरा. Thank you very much. Many of our worthy attendees on internet are asking questions which are not very pertinent to today's topic. So I will just pick up one of those questions which seem pertinent to me.
I would direct this question to Dr. Saeed Ahmed. ये पूछते हैं कि जी how much fruit should we take? उन्होंने ये पूछा कि फल कितने खाने चाहिए जी? How much fruits daily लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताजो साहब की प्रेजेंटेशन के बाद तो कुछ कहना जो है प्रेजेंटेशन के बारे में ज़रा मुश्किल है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन हैं जो आजकल जो है सोशल मीडिया पे भी ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ या इस पे चल रहे हैं। 80% गंदम जो है कार्बोहाइड्रेट वो ये एशिया में पैदा होती है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गंदम यहाँ अल्लाह मियाँ ने क्यों पैदा की, इतना कार्बोहाइड्रेट यहाँ क्यों पैदा किया। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ इस एरिया में प्रोटीन सोर्स जो है, प्रोटीन सोर्स जो हमारे यहाँ है वो ज़्यादा पोल्ट्री है, गोश्त है या ऐसी चीज़ें हैं, वो आप देखें कि उसकी अमाउंट कितनी है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो शुरू से हम डाइट के बारे में अगर सोचते हैं तो आप देखें कि अगर मौजूदोड़ों में भी जो चीज़ें मिली थी ना ओवर द ईयर्स BC में, और जो उस मिस्र में कायरा में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर भी गंदम जो है वो प्रिजर्व्ड मिली थी उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ बहुत हज़ारों साल पहले से यूज़ हो रही है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा पैदा होती है। हाँ, गंदम से ही जो हमारे ऊपर ये आया हुआ है दुनिया की, नहीं, उसमें ये सोचने वाली बात, इसका ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि बैलेंस डाइट जो है ना, आपको ओवर एक्सेस या रिफाइंड फूड या रिफाइंड गंदम ये आप उसको अवॉइड करें। आपको ये अपने लिए या अपने पेशेंट के लिए बिल्कुल वो फाइबर से कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव नहीं कर सकते। ये नेचर के ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा पैदा होती तो बहुत सारा जो है वो ये फ्रूट के बारे में है। हाँ, जो क्वेश्चन है फ्रूट के बारे में, उसमें जो लिखा हुआ है हमारा जो लिवर है वो डेली जितनी हम कंजम्पशन फ्रुक्टोज की करते हैं, फ्रुक्टोज ही उसमें बैड चीज़ है ना, जिसके लिए ये पिछले लेक्चर में भी ताजोई साहब ने बड़ी डिटेल से बताया था। तो वो 40 से 50 मिलीग्राम एक 6 फुट का बंदा अमेरिकन जो है वो उसका लिवर उसको हजम कर सकता है, आम जुबान में मैं ये कहूँगा। उससे ज़्यादा अगर फ्रुक्टोज किसी चीज़ में है या वो कंज्यूम करता है ज़्यादा वो फल, तो उसका मतलब ये है कि वो उसको नुकसान देगा और वो फैट में और दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होगा। हमारे लोगों में ये चीज़ बात है कि हम ज़्यादा मीठा फल पसंद करते हैं, और ज़्यादा मीठा फल जितना होगा ना वो उतना ही उसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होगा, क्योंकि ताजोई साहब ने बड़ी डिटेल में बताया था कि फ्रुक्टोज कितने ज़्यादा उसमें स्वीटनेस होती है। जिस तरह हम आम पेशेंट को जो है, और ख़ुद भी इस चीज़ पे हम करते हैं कि 4-5 फल हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, जिस तरह अंगूर, खजूर, आम और केला, और इसके अलावा एक वो जो जापानी फल आता है। ये जितने फल हमारे यहाँ आते हैं इनमें से मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। तो अगर इससे अवॉइड करके बाकी आप डेली कंज्यूम करते हैं आड़ू या सेब या इस तरह की 2 खरबूजे की फांकें या इस तरह, तो वो कोई हार्मफुल नहीं है, वो नुकसान नहीं देंगी, वो आपकी दूसरे जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उसकी भी अमाउंट पूरी कर देंगे। एक्सेस से ज़्यादा आप जो है ना, एक्सेस जो है कार्बोहाइड्रेट की वो भी है। जो असल चीज़ मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का जो एनुअल मेला होता है जो कि फैमिली कॉन है, जिसका मकसद बेसिकली होता है कि पूरी दुनिया में साइंटिफिक रिसर्चेस के ज़रिए जितनी भी चेंजेस आती हैं या अपडेट्स आती हैं, जिस तरह ताजोई साहब ने ये एक आइडिया फ्लोट किया था बहुत साल पहले रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे सोशल मीडिया पे भी और हर जगह बात हो रही है। पाकिस्तान में भी बात शुरू हो गई है, फैमिली फिजिशियंस में भी बात शुरू हो गई है, लोगों ने इसको अप्लाई करना भी शुरू किया और उसके बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो इसी तरह की जितनी भी मॉडर्निटीज़ चेंजेस आती हैं, फैमिली कॉन का मकसद ये होता है कि 4 दिन में उसको अंडर वन रूफ बहुत सारे एमिनेंट प्रोफेसर्स पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो हमें अपडेट करते हैं। इस फैमिली कॉन का बेसिक मकसद ये है। तो इस साल ये अल्हम्दुलिल्लाह
27, 28, 29 और 30 को पीसी में होने जा रही है। ये डेट्स नोट कर लें अपनी डायरी में। इन दिनों में आप खुद भी वहाँ आएँ, रजिस्ट्रेशन भी कराएं, और आपके जितने दोस्त दूर दराज भी बैठे हुए हैं उनको भी मदऊ करें। ब्रोशर हमारा छप गया है, इंशाल्लाह जो पोस्ट बाय पोस्ट आप तक पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और इन्हीं कलमात के साथ मैं पूरे पैनल का और खुसूसी तौर पर ताहिर चौधरी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी एक कहते हैं ना अरक्रेजी और मगजमारी और बहुत मेहनत के साथ ये अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि आम पब्लिक को भी फ़ायदा होता है, फैमिली फिजिशियंस को भी, पढ़ने वाले सीखने वाले लोगों को भी फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सईद। आई थिंक फ्रूट्स के बारे में जो बात है वो तो ठीक है, फ्रुक्टोज भी है, लेकिन और भी शुगर इसके अंदर है, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें सुक्रोज भी है, फ्रुक्टोज भी है। लिहाजा बॉटम लाइन यही है कि हम लोगों को कम खाना चाहिए, आप लोग कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें। 50 ग्राम्स और लेस अगर आप करेंगे तो आपका वेट भी बहुत जल्दी लूज होगा और ये कीटोजेनिक डाइट भी आप एंटर कर लेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज एन एनोनिमस अटेंडी ऑन द इंटरनेट, और इनका सवाल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी हेल्पफुल towards insulin resistance, but ketogenic lifestyle comes with side effects like development of gallstones, etc. Please throw some light on it. Dr. Tahir, आप बोलेंगे? मेरा ख्याल है कि साजिद उबैदुल्ला साहब ने शुरू में ही इसका बहुत खूबसूरत जवाब दे दिया था इस बात का। हम एक्चुअली अभी ये बात हुई थी फ्रूट्स की। मुझे एक पेशेंट कहने लगा, डॉक्टर साहब फ्रूट तो नेचुरल होते हैं, तो आप इनको क्यों मना करते हैं? तो आई आंसर कि जी फ्रूट्स आर नेचुरल बट वी डोंट यूज देम इन अ नेचुरल वे। हम फ्रूट से इंतकाम लेते हैं। आजकल लोगों ने घरों में दोपहर को फालसे का शरबत भी पीना है, शाम को मैंगो का मिल्क शेक भी पीना है, उसके अलावा खाने वाले फल जो हैं वो इसके अलावा है। कीटोजेनिक डाइट का मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि अब आप सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इससे ये मैसेज हरगिज नहीं जाना चाहिए आप। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कीटोजेनिक डाइट, हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कीटोजेनिक डाइट्स, तो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की। हम पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी, पेशेंट ऑन डायलिसिस विद कॉम्प्रोमाइज्ड किडनी फंक्शन टेस्ट, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वहां तो हम प्रोटीन नहीं देते, हम तो अवॉइड करते हैं उनमें एट सर्टन लेवल वहां पे जाके। तो ये एक नॉर्मल बंदे के लिए कीटोजेनिक डाइट कुछ नहीं करने लगी। मैंने आपको मिसाल दी शॉन बेकर की, कि जो कि पिछले कई सालों से सिर्फ अपनी वो स्टेक्स के ऊपर, मीट के ऊपर और फैट्स के ऊपर है, और वो इतना सेहतमंद आदमी है। आप जब उसको निकालेंगे शॉन बेकर को, तो आप देख के परेशान हो जाएंगे। तो हर एक चीज का तरीकाकार है। हम प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर चीज इंटरनेट से पढ़ के खुद करने लगते हैं। अगर आपने कीटो डाइट करनी है, गो अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर रजिस्टर्ड डाइटिशियन और एक्सपर्ट। आप प्रोफेसर साजिद उबैदुल्ला साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे की ओपिनियन लीडर्स हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिनको पता है कि मुझे कीटो डाइट किस लेवल पे। और ये जरूरी नहीं है कि एक तरह का कीटो प्लान सबके लिए है, वन कोड डजंट फिट ऑल, सबके लिए डिफरेंट होगा। तो कीटोजेनिक डाइट में प्रॉब्लम कोई नहीं है, कीटोजेनिक डाइट को यूज करने में प्रॉब्लम है। आज भी मैं एक पेशेंट देख के आ रहा हूं, वो फरमाने लगी, डॉक्टर साहब मैंने जो आपने दिया था ना मुझे डाइट प्लान, तो वो तो मैंने उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो फला एक न्यूट्रिशनिस्ट से लाई थी, तो वो कहती थी मुझे इससे पहले बड़ा फायदा हुआ है, अपने डॉक्टर के प्लान पे जाने से पहले ये तो ट्राई करो। तो जब आप इस तरह के तजर्बे करेंगे तो फिर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, ये कीटोजेनिक जो लेते हैं ना फूड उसके लिए, या फैटी फूड, उसके लिए एक चीज़ बहुत मस्ट है। मोस्टली पेशेंट जो है ना, आपको ना मैदे का प्रॉब्लम कहते हैं, एसिडिटी हो गई है, इसके साथ आप फ्रेश ग्रीन सैलड जो है ना कचूमर, वो ज़रूर ले लें विदाउट एडिंग साल्ट उसमें ना ऐड ना करें, वो साथ ले लें, तो ये आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, और डाइटरी फाइबर भी मिल जाएगा, फैटी लीवर भी कवर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। कीटोजेनिक डाइट में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फैट्स लें और प्रोटीन्स लें। बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी हैं जो वेरी लो कार्ब हैं, जो आप ले सकते हैं। मसलन ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसके अंदर कॉलीफ्लावर है, लेटस है, गुड, बंद गोभी है, केल है, आपका आजकल बिटर गोर्ड है। इसके अलावा फ्रूट्स में तमाम बेरीज आती हैं, वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। और पीचेस हैं, ये काफ़ी लो कार्ब फूड्स हैं जो कि आप कीटो डाइट पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेफली।
तो आज का lecture was a very interesting lecture. To end, I would request our chief guest and panelist for today, Dr. Professor Sajid Ubaidullah, to kindly sum up this today's meeting. मेरा ख्याल है कि जो आज के इस सारे के सारे जो एकेडमिक रिहर्सल थी उसका जो क्रक्स है वो एक ही है। हम लोगों को हर तरह से इस तरह की बैलेंस डाइट को लेके चलना है कि जिससे हम लोग अपना बॉडी वेट जो है उसको नॉर्मलाइज रख सकें। आपके सामने ताहिर साहब है, ताहिर साहब को खड़ा कर लें। जो ताहिर साहब की फिजिक है आपको बिल्कुल वैसी फिजिक चाहिए कि एक बंदा जब साइड से उसको आप देखें तो उसका पेट जो है वो आपको नजर ना आए लगा। मैं वैसे कई दफ़ा अपने कई पेशेंट्स को मजाक इसके तौर पे कहता हूँ कि आप जब लेटे हुए हैं, एक बंदा लेटा हुआ है सोने के लिए या वैसे, तो उसका पेट कभी भी उसके सीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसका पेट उसके सीने से ऊपर है तो समझें कि वो ठीक ठाक ओवरवेट है और उसको अपने पेट की जो अंदर की चर्बी है उसको निकालने की ज़रूरत है। और उसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अक्सर डाइट से काम नहीं बनना, बल्कि आपको उसके साथ एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा जोर एक्सरसाइज पे नहीं दिया क्योंकि टॉपिक उस तरह का नहीं था, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आप चंद लफ्ज़ों में उसकी करेक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में आप सिर्फ एक अगर टारगेट रख लेते हैं कि आपने उस बंदे का बॉडी वेट जो है उसको नॉर्मल बीएमआई में लेके आना और एटलीस्ट 10% जहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं कम कर रहे हैं, तो उस बंदे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। और यही ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों का है। जैसे अभी बात हो रही थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अकेली नहीं है, उसने अपने साथ बहुत सारी चीज़ें को लेके साथ चल रही है, जिसमें फैटी लिवर भी है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, डिफरेंट वेसल्स का, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी है, कॉर्नरी आर्टरियल डिजीज है, ऊपर सीवीएस के लिए, डिमेंशिया के लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ, इनन्यूमरेबल लिस्ट है कि जिसको वो पोटेंशिएट कर रहा है थ्रू इट्स कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन करती है एंडोथेलियम की, और वहां से वो हर वेसल को इन्वॉल्व करती है। ताहिर साहब ने कहा कि अगर आपने एक बंदे में फुट में गैंग्रीन को देखा है तो यू शुड बी एब्सोल्युटली श्योर कि उसकी हर नाली जहां जहां पे है उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली जरूर होगी, कम हो ज्यादा तब्दीली होगी। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर जब अपने क्लिनिक्स में पेशेंट में बैठे होते हैं, तो मैं लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी मैं एक चीज कही थी, हमें अपने मरीज को हर चीज देते हैं लेकिन उसको वक्त नहीं देते, और जो वक्त है वो सिर्फ दो चीजों के लिए है। एक, आप उसको गाइड करें, हर बीमारी के लिए इंडिविजुअली डाइट प्लान उसको दें, और फिर जब वो आपके पास आता है तो इंश्योर करें कि वो उस पर अमल कर रहा है। अब आप में से अगर किसी दोस्त ने कभी मेरे को प्रेस्क्रिप्शन देखे हो तो उसमें एक, जब पहली दफा मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आता है तो जो मेरे पास पेपर जिसमें ब्लड शुगर रिकॉर्डिंग का करवाता हूँ उसकी बैग पे मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। उस बंदे के साथ बैठ जाता हूँ, बैठ के तो उससे पूछता हूँ सबसे पहले कब नाश्ता करता है, कब दोपहर का खाना खाता है, कब रात का खाना खाता है। मोस्टली उनके टाइम, जिसने कभी मुलाकात आप लोगों से नहीं हुई या मेरे से नहीं हुई, तो उनके टाइम अपने ही होंगे। कोई नाश्ता कर रहा है 11 बजे, दोपहर का खाना खा रहा है 1 बजे, 11 बजे उठता है, नाश्ता करता है, 1 बजे दोपहर का खाना खाता है, फिर 10 बजे जाके रात का खाना खा रहा है। अब इसको आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से एक डायबिटिक पेशेंट को? तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन सब लोगों को उनका डाइट प्लान दें, टाइम के लिहाज से, मिकदार के लिहाज से, कि भाई आप ये खा सकते हो। अब फ्रूट की बात हो रही थी, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप सब भी फ्यूचर में ऐसे ही करें, आई एम श्योर करते भी होंगे। मैं जब अपने पेशेंट को फ्रूट का टाइम बता रहा होता हूँ कि जी आपने नाश्ते और दोपहर के दरमियान में आप ले सकते हैं ये चीजें, ले सकते हैं, फ्रूट भी शामिल है, या फ्रूट लें या ये लें या ये लें, तो मैं फ्रूट के लिए हाथ ऐसे करता हूं, ऐसे कि आप इस मिकदार में फल ले सकते हैं, उन 5 के अलावा जो सईद साहब ने नाम लिया है वो मैं लिखता भी हूँ और उनको क्रॉस भी करता हूँ साथ कि आम, केला, अंगूर, खजूर, जापानी फल नहीं खाना। फिर अगला साथ उसको लाजिम तौर पे लिखता हूँ कि आपने जिन फलों को हमने अलाउ किया है, मसलन सेब जो लोगों को बड़ा पसंद है, लिखते हैं कि आपने उसका जूस नहीं पीना, कि जूस आपने कोई निकाल के, डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, और इसे कहते हैं कि यार एक सेब का अगर इन्ना जिना जूस भी है ना तो आपने उसको भी नहीं लेना। अगली चीज जो जरूर मैं लिखता हूं, जो अभी मैदे की बात कर रहे थे कि नान कुलचे नहीं खाने, नान कुलचे भी लिख के काटा जाता है उसको। अब कभी अगर आप मिल जाए मेरा पेपर तो आप जरूर देखिए, नान कुलचा भी काट दिया जाता है।
और चावल के ऊपर जाके कहा जाता है कि जिस वक्त आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो, बॉडी वेट ठीक हो, तो आप हफ्ते में इस तरह इतनी मिकदार में ले सकते हैं। वो भी जब कंट्रोल हो और आपका बॉडी वेट भी उस रेंज के अंदर आ जाए। ये मेरा और आपका फर्ज है, ये मेरा और आपका फर्ज है। और मैं अगली बार जो आप कहने लगा कि जब नेक्स्ट टाइम अगला वो पेशेंट मेरे पास आता है वापस, तो सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, मैं वो कागज बाहर निकालता हूँ, उस कागज का मुंह अपनी तरफ कर लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ, बताएं आपने क्या इस पे अमल किया है। जो बंदा उस पे अमल नहीं कर रहा होता उसको डांट टपट पड़ती है, ठीक ठाक किस्म की डांट टपट होती है। और जो अमल कर रहा होता है आप उसको शाबाश भी देते हैं और उसको एनकरेज भी करते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में अपने पेशेंट्स की ब्लड शुगर के कंट्रोल को सिर्फ एक चीज के साथ देखा है, और वो यही चीज है, गिव देम टाइम, give them timing of their food, quantity of their food, variety of their food, and then ask them कि please do walk for this much time and try to reduce your body weight. और उसके बाद आपकी मेडिकेशन की जो सिलेक्शन है, that should be according to that particular patient. एक ओवरवेट बंदा है तो आप उसको TZDs ना दें। क्यों देते हैं उसको TZDs? आपके पास तो अब माशाल्लाह बहुत सारी ऑप्शन आ गई है और आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आज डॉक्टर ताहिर ने एक चीज जिसके बारे में एंड पे शायद टाइम नहीं था तो उन्होंने बात नहीं की कि विच मेडिकेशन कैन डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच मेडिकेशन कैन डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। बड़ी सादा सी दवाइयां हैं। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी भी मेटफॉर्मिन है कि मेटफॉर्मिन इज नंबर 1। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे अगर यूज करना चाहें तो जो ताहिर साहब ने बात की थी कि SGLT2 इनहिबिटर्स, उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि ग्लूकोज ज्यादा बाहर जाए, कम हाइपरग्लाइसीमिया हो, कम हाइपर इंसुलिनीमिया हो, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा TZDs हैं जिनका मैं नाम लिया, लेकिन मैं इनको डरते हमेशा नाम लेता हूँ। दे डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो दो ही आप जानते हैं, एक दे लीड टू गेन ऑफ वेट और दूसरा जो है वो कार्डियक पेशेंट में आप नहीं देते, और चौथा जो है जिस पे शायद लास्ट टाइम मैंने बात की थी, दे आर GLP-1 एगोनिस्ट। सो 4 दवाएं अभी तक ऐसी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक ही है, डाइट, वेट, और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज, एंड देन इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज वन ऑफ दीज मेडिकेशन डिपेंडिंग अपॉन कि उसको किसकी इंडिकेशन है। टाइम को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि आप जैसे आपने अभी बताया कि पहले इसका जवाब हम लेंगे ताहिर साहब से जिन्होंने वो फिगर दी थी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली लेक्चर में भी आपको बताया था कि तकरीबन जितने रिनाउंड क्लिनिक्स हैं लाहौर में, वो सबको एक ही छपा हुआ चार्ट दे रहे हैं। आपने प्रोफेसर साहब की बात पे गौर नहीं किया, सबका इंडिविजुअल चार्ट बनाना है आपने। इंसुलिन वाले का डाइट चार्ट और होगा, ओरल वाले का और होगा, मेटफॉर्मिन वाले की डाइट प्लानिंग और होगी, और सल्फोनिलजूरिया वाले की और होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ईटिंग है, अगर आप इसको खत्म कर दें तो आपके जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी डोजेजेस कम होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी दवा भी साथ साथ कम होनी शुरू हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत बात जो प्रोफेसर साहब ने की, और मुझे उससे फिर वो वाकया याद आ गया अपना, आई एम ब्लेस्ड, आपने राल्फ डिफ्रांजो का नाम सुना होगा। उनके बगैर, उनके जिक्र के बगैर कोई इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुमकिन नहीं है कि आप ऑमना सॉकटेट की बात करें और राल्फ डिफ्रांजो को आप ना जानते हो। आई हैव बीन ऑनर्ड कि मैं 1 साल मुझे सैन फ्रांसिस्को में उनसे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, और सॉरी फॉर 7 days सैन फ्रांसिस्को में मैं उनसे पढ़ा। और जैसे भी उन्होंने मेटफॉर्मिन की बात की, राल्फ डिफ्रांजो ने मुझे 2004 में ये फार्मूला सिखाया था कि अगर तुम्हारा पेशेंट 8% बॉडी वेट कम कर लेता है, 8% मींस अगर वो 100 किलोग्राम का है तो 92 पे आ जाए, 8% वेट कम कर ले, दैट इज इक्वल टू 2 tablets ऑफ मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने उसको 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन बीडी दी है, इससे उसके पीसीओएस भी कम होंगे, प्री डायबिटीज है तो नॉर्मोग्लाइसीमिक हो जाएगा, अगर ओवरवेट है तो उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेट रिडक्शन है, इसको आप समझ लें ये दवा है, इट्स बेसिकली अ मेडिसिन। तो जो आपका सवाल ये था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, मेरे ख्याल में
इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका पेशेंट दवाओं पे है तो तब आप इंसुलिन वाले का डाइट प्लान और बनाएंगे, सल्फोनिल यूरिया वाले का और मेटफॉर्मिन वाले का और। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स कम करने से आप कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, फैट स्टोरेज नहीं होगी, वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी और यू विल बी एट अ बेटर प्लेस। लेकिन उसमें एक मोटी सी बात तो यही है ना कि इंसुलिन बिलफर्ज आप दे रहे हैं तो उसका तो एक बेजल आपने एक्सोजेनस दे दी है, उसको अगर आप फ्रीक्वेंट में नहीं देंगे या स्मॉल उसका ये शायद सबसे मिथ है कि उसको हमने खिला के छोड़ना है बार बार, ये एक मिथ है, कुछ भी नहीं होने लगा। आप ये नहीं है कि आप हाइपो के चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना सर, आप उधर से इंसुलिन भी तो कम करेंगे ना अपनी, बेशक जब कम आप करना उसको जब उसके फ्रीक्वेंसी के मील्स कम करेंगे तो इंसुलिन यूनिट भी तो कम से अगर आपने आप लेंटस दी है 24 आवर्स, उसका तो बेजल वही जा रहा है। अच्छा, लेंटस के साथ तो पहली बात है कि हाइपो होना ही नहीं है, पहली बात तो ये है, लेंटस से तो हाइपो होना ही नहीं अगर लगा। प्रोलॉन्ग वो फास्टिंग basal होगी तो insulin है। होगी, है जी प्रोलॉन्ग फास्टिंग में तो होगी यार, उन्होंने किन्ने किया कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग, उन्हें कोई 3 दिन तो नहीं भूखे रहना। 16 घंटे का अगर आप इंटरमिटेंट कह रहे हैं तो फिर नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है 16 घंटे का, तो जिक्र ही नहीं हुआ इंटरमिटेंट, मैंने नहीं कहा कहीं। पिछले लेक्चर में तो यही बात हुई ना 16 और 8 तो मैं मुझे खुद बताएं कि अगर एक पेशेंट इंसुलिन पे है तो मैं उसका 16 घंटे के लिए खाना बंद कर सकता हूँ। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी? चलें तो आपकी सर उसने जाना भी। I think we should stop here. एक मिनट I लेना think चाह we रहा should हूँ। stop here. Excuse me. एक्सक्यूज एक Yes. मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। साजिद अबैदुल्ला साहब हमारे बहुत बड़े और बहुत मुखलिस टीचर हैं, तो मैं इनके साथ एक पुरानी अपनी यादें ना शेयर करना चाह रहा हूँ। जो बात हो रही है उसी बात पे कि वेट रिड्यूस करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करें, कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करें। जब हम फाइनल ईयर में था ना MBBS में, जो हमारे टीचर थे मेडिसिन में, तो जब हम जाते थे हमारी स्टेथोस्कोप का लंबा पाइप होता था जो उसको रिड्यूस कर देते थे। और आज मुझे वो वाकया याद आ गया कि हर चीज को जो बैड है ना उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि उससे रिजल्ट साउंड अच्छी नहीं आती थी, तो ये रिड्यूस करते थे। मैंने शेयर करना था, बहुत शुक्रिया। Just सर एक एक दफा शायद आप सोचें भी, मैं हर स्टूडेंट का उसके स्टेथोस्कोप देके उनकी इतनी पाइपें याद है वो यहाँ तक की, तो उन सारी पाइपों को मैं अपनी स्टेथ के साथ रख के नाप के खुद काटा करता था और फिर इनको दिया करता था कि भाई इसको ऐसे यूज करें। excuse excuse Thank you very much. एक 2 मिनट का एक क्वेश्चन सवाल, एक है, सवाल। जस्ट 2 सर मिनट। ये EGFR जो हम कराते हैं इसमें ग्लूकोफेज जो मेटफॉर्मिन है इसकी रिस्ट्रिक्शन करनी होती है आपने EGFR के वैल्यूज के हिसाब से, तो उसमें सर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये बड़ा सादा सवाल है। 30% से अगर नीचे चली जाए GFR तो आप बंद कर दें, 30% से ऊपर GFR है तो आप उसकी डोजेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो डोज दे रहे हैं, अगर आप बहुत हाई डोज नहीं दे रहे, से 1 ग्राम 3 टाइम दे रहे हैं, तो उसको आप रिड्यूस करके 500 पे ले आए। लेकिन 30 ml GFR से अगर कम है फिर रोक दें, ऊपर है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेशेंट आया ही 30 एस्टिमेटेड GFR के साथ है तो उसमें मेटफॉर्मिन स्टार्ट ना करें, उसमें नहीं। जी, माय नेम इज डॉक्टर यहाँ पे समीर वो नियाज़। बड़ी अच्छी जो आपने जो बात की है कि हम लोग जब भी किसी बंदे के RFT लिखते हैं ना, आप सिंपल RFT किसी से ना कराया करें, सिर्फ यूरिया क्रेटिनिन मत कराएं, वो साथ EGFR करके दें हमें। ठीक है ना, अच्छी लैब सारे करती हैं तो आप किसी अच्छी लैब से हमेशा कराएं ताकि वहां पे आपको साथ ही EGFR भी मिल जाए और आपका जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली आंसर कर सकें। और अगर आपको लैब नहीं करके देती तो यू कैन कैलकुलेट एट योर क्लिनिक विद कॉक, क्राफ्ट एंड गॉल्ट फार्मूला। ये आप उसमें देख लीजिए कैसे, बड़ा ही आसान है। आगे My name is Dr. Samir Niazi. I'm a cardiologist with special interest in cardiometabolic and preventive cardiology. So my question basically दो थे, एक तो मैं स्किप कर रहा हूँ, तकरीबन डॉक्टर सईद साहब ने कवर किया कि जब आपने इंसुलिन स्पाइक बताई है, आई डोंट थिंक कि हर कार्बोहाइड्रेट्स की स्पाइक सेम है। मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की स्पाइक काफी लो है और थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, वो उन्होंने कवर किया भी है। तो इसलिए शायद कि जो सिंपल शुगर्स हैं वो तो डेफिनेटली काफी बैड है बॉडी के लिए, कि वो इंसुलिन स्पाइक देके आपको रेजिस्टेंस में ले जाएंगे, ओबीज करेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट SGLT2 की दफा जब आपने कहा कि ग्लूकोज लूज करने की वजह से शायद ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि वो ग्लूकोज इतनी बुरी है कि SGLT2 ने ग्लूकोज लूज की और हमें 38% मोर्टेलिटी बेनिफिट मिला। आई डोंट एग्री, क्योंकि ये जो ज्यादा सोडियम लूज की वजह से हमें जो मोर्टेलिटी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसे को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज। दूसरा, मैंने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बिलीव कि ये जो इसके और कुछ अननोन मैकेनिज्म्स भी हैं प्रोबेबली, जिस पर भी स्टडीज हो रही हैं कि इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये कहना कि ग्लूकोज लूज की वजह से हमें इतनी मोर्टेलिटी मिली है, मेरा नहीं ख्याल, सोडियम लूज का इसमें इफेक्ट बहुत ज्यादा है।
कि ऐसी बात हुई नहीं। आपने कहा था ना कि SGLT2 चूंकि सोडियम लूज कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छी ड्रग है, ये तो बात हुई थी थोड़ी सी बीच में। नहीं जी सोडियम की बात नहीं जी मैंने ये कहा था कि अगर हम SGLT2 यूज करके अपने सिस्टम में से ग्लूकोज को थ्रो आउट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट टू पुट द लोअर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द सिस्टम, आप डालें ही कम। वो मैंने ये आपकी कहा बात सही है, लेकिन अगर ये दवाई सिर्फ ग्लूकोज लूज करती तो इतना मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं आ सकता था, ये हमारा बिलीव है इस पे। मोर्टेलिटी बेनिफिट जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है ना, अनएक्सपेक्टेडली हाई, जिसके बाद क्लास 1 इंडिकेशन है हार्ट फेलियर भी चली गई है। अब आप आपको पता बिल्कुल होगा ठीक जी। कह रहे हैं, जी सर। कार्डियक के हवाले जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि उसका सोडियम के लूज की इफेक्ट वजह होने से की मैंने- वजह से ऐसा और है। ये चीज हमें स्पाइनल इलेक्ट्रॉन से भी मिली, जी जब बाकी हम डायरेटिक्स पे बात करते हैं तो उससे भी हमें हार्ट फेलियर में मिली, ASARB से भी मिली और इससे भी मिली। तो ये कहना कि ग्लूकोज इतनी बॉडी के लिए बुरी है, ये इंप्रेशन थोड़ा गया है, इसलिए इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लूकोज हमें बॉडी को बड़ा नीड भी है। या आप डिबेट कर सकते हैं कि इसकी सोर्स फैट और प्रोटीन बेस्ट है या कार्ब्स है या कॉम्प्लेक्स बेस्ट है या सिंपल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ग्लूकोज इज एज बैड फॉर द बॉडी। मैं अर्ज कर दूं, आपने थोड़ा आज लेट ज्वाइन किया, आप लेट आए, मैं देख रहा था आपको। 5-10 मिनट्स हाँ जी, ग्लूकोज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अपनी बात पे कायम और क़यामत तक कायम रहूंगा। ग्लूकोज हैज जीरो बायोलॉजिकल नीड इन योर बॉडी। पहली बात तो ये समझ ले, जो आपने डाइटिशियन की किताबों में ये पढ़ा है ना जी, इतने % कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल है, मुझे आप कोई दुनिया की किताब बताएं इसमें एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। दूसरा, आप कार्डियोलॉजिस्ट है, आप हर अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को सॉल्ट कम करना बंद कर दें। सॉल्ट कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? अब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, अब टेक लगा ले तो जब आप इंसुलिन कम करते हैं, इंसुलिन का काम है सॉल्ट एंड वाटर स्पेयरिंग है, ये बॉडी में सॉल्ट और वाटर को होल्ड करती है इंसुलिन। जब आप बाहर से सॉल्ट देना बंद कर देते हैं, बॉडी ट्राइज, जब आपने बाहर से सॉल्ट कम कर दिया तो वट एवर सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम, इंसुलिन कम्स अप टू प्रिजर्व दैट अवेलेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि बाहर से तो आप दे नहीं रहे, अब जो अंदर पड़ा हुआ सॉल्ट है उसको इंसुलिन प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, और वो प्रिजर्व तभी करेगी जब ये अप रेगुलेट होगी। डज इट मेक सेंस? अब आप इसके बारे में, मुझे पता है कि आप फौरन आगे मुझे कहेंगे डैश डाइट। डैश डाइट के अंदर हमने सिर्फ सोडियम उठा लिया। डैश डाइट is not about cutting the salt, it is also about cutting the carbohydrates as well. Dash diet में उस पोर्शन को हमने लूज कर दिया। Salt is 10 times better in a hypertensive person rather than cutting it down. फिर वही बात है कि हम सिर्फ इसको सॉल्ट को थ्रू द लेंस ऑफ हाइपरटेंशन देख रहे हैं। सॉल्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ। जिस तरह से आपकी जिंदगी के लिए ग्लूकोज जरूरी है, लेकिन इट इज एसेंशियल टू हैव ग्लूकोज इन योर सिस्टम, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू कंज्यूम ग्लूकोज। सिस्टम को जितना चाहिए वो खुद ही बना लेता है। तो सॉल्ट कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, क्योंकि जो अवेलेबल सॉल्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसे विल कम अप। चलिए, थैंक यू। आपने एक तो जो सुन्नत सुनी थी कि खाने से पहले चुटकी या बाद बारी, वो आज आपने रीजन हमें बता दी कि सॉल्ट का बेनिफिट भी है भारत। ठीक है, साल्ट के बारे में एक बात कह दूं मैं, साल्ट जो हम रिफाइंड वाला लेते हैं उसमें 99% सोडियम क्लोराइड, वो नहीं लेना चाहिए। जो हमारा डली वाला क्योड़ा वाला है ना, वो लेना चाहिए। उसमें 20% मिनरल्स है। जो मिनरल्स है वो आपकी बॉडी को बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, वो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से रोकते हैं। मैं मुख्तसर बयान करूंगा, शुक्रिया। थैंक यू। कि जो मसल्स हैं उन पे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वो काम नहीं कर रहे होते, मसल्स में ग्लूकोज नहीं जा रही होती। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो चैनल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कुदरती तौर पे डबल चैनल मौजूद हैं जो उसके साथ खुल जाते हैं और ग्लूकोज इस्तेमाल शुरू हो जाता है, और वो हेल्प आउट करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाए। तो ये एक्सरसाइज का, यही वो एक्सरसाइज का जो प्रोफेसर साहब ने बताया, ये बेनिफिट है कि जीनियस, वो खालिक कायनात जिसने आपको तख्लीक किया है, हर सेल में जाने के लिए इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज दिस इज द वे ऑफ द मसल टू टेल दैट टू द इंसुलिन। अब मसल्स की और इंसुलिन की बात हो रही है। मसल इंसुलिन से उस वक्त ये कह रहा होता है, लुक व्हेन आई एम रेस्टिंग यू आर द बॉस, I am taking up all the glucose.
But while I'm exercising, now I am the boss. I will take my needed glucose without your help. Please stay behind. stay Away. at the side. मैं बॉस हूं, मैं अपनी मर्जी का ग्लूकोज ले लूंगा. This is again another genius design or the designer जिन्होंने आपको एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे. और वो तमाम लोग जो आज किसी वजह से भी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, रात को या किसी खाने से, किसी पार्टी से, शादी से आए हैं, बहुत ज्यादा स्टार्च और ग्लूकोज यूज करके, they go to the nearest park, take a brisk walk for 15 minutes. आपका ग्लूकोज लेवल जाने से पहले और आके चेक कीजिएगा. वो ग्लूकोज लेवल जो कि घंटों बल्कि सारी रात उसने हाई रहना था, that will come down within 15 minutes. ये बात नहीं, वो टेंशन तो आपने डाल दी ना, मैंने तो टेंशन नहीं डाली. Even then आपकी ग्लूकोज लेवल नीचे फिर भी करवा. आएगी, अब टाइम भी तो लगेगा ना सर. आपने एकदम से. अच्छा जी, we have Dr. Tariq Mia, our president in UK, and he would like to join us and say a few words about today's CME. Over to Dr. Tariq Mia. Thank you very much, Arshad. It was an excellent presentation by Dr. Chachod Sahab as usual. और मैं ये समझता हूँ कि एक ये जो डायबिटीज का कोर्स हमने किया, मैं अभी पढ़ रहा था लोगों के कमेंट्स कि लोगों का पूरा एक माइंड सेट जो था वो चेंज हो रहा है, और लोग जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के ऊपर हैं वो. और मैं प्रोफेसर साजिद अबैजुल्लाह साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स कि जो इन्होंने कहा कि मैं पीछे प्रिस्क्रिप्शन के लिख के देता हूँ. मेरा ख्याल है कि अगर तमाम हमारे फैमिली फिजिशियन इसको फॉलो करें और जब पेशेंट आपके पास आए और उससे वो पूछे, तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे इंडिया में उन्होंने एक स्लोगन बनाया है कि टू रिवर्स डायबिटीज बाय द ईयर 2047 जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे. और अगर हम भी इस तरह करें तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में काफी ज्यादा डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं. एक चीज मैं जो इंग्लैंड बैठ के सोच रहा था कि जो अंग्रेजों को मुयस्सर नहीं है, वो खुशी जो कि हम पाकिस्तानियों को मुयस्सर है, वो यहाँ पे 24 घंटे लाइट नहीं जाती, लेकिन हमें जो खुशी होती है वो लाइट आ गई, ये इन लोगों को बेचारों को मुयस्सर नहीं है. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को ये बहुत ज्यादा मुयस्सर है. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर सईद ने बड़ा अच्छा बताया, अरशद आपने बड़ा अच्छा मॉडरेट किया, बशीर साहब ने बड़ी अच्छी डाइटरी टिप्स दिए. और मैं तमाम उन दोस्तों से जो ऑनलाइन और जो फिजिकली प्रेजेंट हैं कि आप इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और तमाम दोस्तों का. और आखिर में मैं फिर डॉक्टर तानिया शकूरी के लिए हम सबको दुआ होना चाहिए. बड़ी अच्छी फिजियोलॉजिस्ट हैं और एक एसेट है इस मुआशरे के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे. और आप तमाम दोस्तों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में आपके साथ होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे ऑनलाइन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त था, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमें एक लेक्चर कीटोजेनिक डाइटिंग पे भी रखना चाहिए. कीटोजेनिक डाइट, दैट इज अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक एंड आई थिंक वी शुड कीप इट. And I think this is the burning hot topic of today, and it will benefit everyone, diabetics as well as non-diabetics, obese people, and Weight Watchers. Thank you so much for coming here. Thank you. सर आपका बहुत शुक्रिया. आलिफ साहब आ जाए आप. आ जाए आप भी आ जाए. नहीं
you.